Hello everyone. Today we'll discuss about the topic is the National Cancer Control Program. National Cancer Control Program is a public health program which are generally organized for the public, okay, for reduce the number of the cancer cases as well as to identify the cancer cases, to identify the how many dead due to the cancer, as well as to improve the quality of the life of the cancer patients, okay. So in that the first is the magnitude of the problem in that in the world. The cancer is the अगर हम कैंसर की बात करते हैं 12% of the death throughout the world just because of the cancer. In the developed countries cancer क्या है second leading cause है death का, ठीक है. And in developing country this is the third rank holder cause of the causing of death, okay. In developing country around 21% of the death due to the cancer, about 7300 cancer death per year. Then International Agency for Research on Cancer IARC in 2008, according to that 12.7 million new cases. Out of 12.7 million, 5.6 million economically developed countries में थे और 7.1 million cases जो थे economically developing countries में थे, ठीक है. Then 7.6 million cancer death जिसमें से 2.8 million जो death थी वो developed countries में है और 4.8 million developing countries में है. So developing countries having a more means they are giving a more death ratio due to the cancer rather than the developed countries. Okay. Now in India, अगर हम इंडिया की बात करें तो incidence in male 4,77,482, incidence in female, okay, 5,37,452. The mortality death यानी कि death rate in male is 3,56,730 and mortality rate in female is 3,26,100. The prevalence rate of the cancer in a male is 6,64,538 and prevalence rate of the cancer in a female that is 11,25,960. So these are the actually the this ratios according to 2018 only. Okay. So these are the actual scenario of India. Okay. By 2030, according to the researchers and according to the scenario, okay, by 2030, the global cancer burden is expected to nearly burden the growing is 21.4 million cases and 13.2 million deaths. Okay. So the cancer epidemiology in that the first 70 to 90% किसकी वजह से environmental factors हैं. Tobacco and smoking due to the 50% cases due to the tobacco and smoking and 70 to 90% cases due to the environmental factor. Okay. 20 to 30% factor are due to the dietary practice जो हम dietary habits लेते हैं. जैसे for example आपको पता होगा कि nowadays whatever we are eating or whatever we are purchasing from the market, especially the food material, the adulteration are there. The adulteration, some food adulteration are good because it can be preserved the food for a long time. Okay. But nowadays adulteration are increase the quantity and decrease the quality. Okay. आपने देखा होगा we are eating so many fruit. हम अनसीजन में भी फ्रूट्स ले लेते हैं, वो फ्रूट्स अनसीजन में भी अवेलेबल होता है. Why and how? Just because of the chemicals and we are putting some ingredient in a natural quantity just because of the increase the uh, quantity level of the particular food item. Okay. The reproductive and the sexual practice, these are the another cause. Due to of that cause 20 to 30% having a 20 to 30% person having a cancer. Okay. Now अगर हम बात करते हैं tobacco तो 40 to 50% in male and 20% to women. Oral cancer due to the tobacco, the person having oral cancer, oral precancerous conditions दोनों में क्या करते हैं condition rise होती है.
नेक्स्ट वन इज डाइट। तो अगर हम डाइट की बात करें तो 10 to 70% ऑफ द कैंसर जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट। मैंने आपको कहा ना, जो भी हम डाइट लेते हैं, जो हमारी फूडिंग स्टाइल है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, केमिकल वाला फूड ज्यादा लेते हैं, ठीक है। अगर आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन में हम लोग एडल्ट्रेशन एक यूनिट है, उसमें हमने पढ़ा है कि एडल्ट्रेशन में कहते हैं बहुत से केमिकल इंग्रेडिएंट मिक्स किए जाते हैं, फूड के प्रिजर्वेशन के लिए किए जाते हैं, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए किए जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, वो अडल्ट्रेशन क्या है, अनएथिकली है। फूड की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए लो प्राइस में मार्केट, लो प्राइस में फूड आइटम को सेल किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर health. Okay, the cancer of the upper and lower digestive tract, mouth, throat, esophagus, lungs, stomach, large intestine, breast cancer in a woman. ठीक है। तो जो हमारे डाइटरी फूड होता है, नॉट ओनली द अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन इज द वन पार्ट ऑफ cause of the cancer. Okay, another is the unhygienic condition. Okay, and also taking a, हम क्या करते हैं, we are purchasing the food from the outside. Okay, we did not take a fresh food or the good qualitative foods, because sometimes depend upon the economical condition, because India is a developing country and a hug of population are there, and we can't provide a good, means the equal number of the food quantity to the equal number of the people populations. Okay, nowadays according to 2019, with 1.37 billion population, having an Indian population. Okay, and around in 2045 we are getting first position in the population. So this is also another reason. Okay, the diet rich in animal protein, smoking and alcohol. Okay, so these are the dietary factors which are directly affect your health, causing the cancer. Now the cancer of the head and neck, the tobacco and alcohol, green and yellow vegetable will protect against the oral cancer. ठीक है। So head and neck cancer किससे होता है, आपके tobacco and alcohol consumption से। If you are taking a green and yellow vegetable, then you can protect your oral cancer. Green vegetable you all know ना, green leafy vegetables, and the yellow vegetables like pumpkin है आपका, या फिर आपका this one। ओके, जैसे आपका पम्पकिन हो गया, तो कॉर्न हो गया, स्क्वैश हो गया, येलो पपाया हो गया, एंड येलो पोटैटो हो गया, येलो बीन हो गया, पम्पकिन, golden beet also. So these are the foods generally you are using for the prevention of this one, oral cancer. Okay, now the cancer of the stomach. अगर हम कैंसर ऑफ स्टमक की बात करते हैं, तो Japanese having a higher rate of stomach cancer than Indian. And what are the risk factor in Indian? Because consumption of the large amount of red chili. हमने देखा होगा हमारे जो फूडिंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट टू अनदर कंट्रीज। हमें चीजें चटपटी चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाला हो, that is actually directly affect your health. Okay, नेक्स्ट वन इज अ फूड एट वेरी हाई टेम्परेचर। अगर बहुत ज्यादा गर्म फूड लेते हो तो क्या करता है, वो कॉज करता है। इसके अलावा अल्कोहल कंजप्शन, तो दीज कॉज स्पेशली आर इन इंडिया। Tobacco extract to birth cause the high rate of the stomach cancer is the Mizoram. Okay, so just the tobacco is another cause of the cancer and the high rate in a Mizoram. Okay, Mizoram. The primary prevention for the prevention of these stomach cancer, we are taking a primary prevention. We should avoid these kind of food which are directly affect to our health and cause the cancer. Okay, the cancer of the large intestine, the heavy consumption of the red meat can lead to the risk of oral cancer. If the person are taking the heavy consumption of the red meat, okay, then it will be cause a cancer. Now the cancer of the breast in the woman. So as we are know that in अगर हम last 2011 scenario की बात करते हैं, that time the woman having a more, means that time the cancer more in women, especially the breast cancer. But nowadays, as comparison to breast cancer, the cervical cancer and the yeah, it's cervical cancer actually. Rather than the breast cancer, cervical cancer having a more chance in the female. Okay, so the cancer of the breast cancer, the cancer of the breast in a woman. What are the causes and the risk factor is?
It is a leading cancer in a woman. The risk factor is late age as first pregnancy. अगर mother 30 year के बाद pregnant होती है, then having a chance of the cancer. Single child, अगर mother का single child है, then late age at menopause. ठीक है, अगर mother की जो menopause है, अब देखा होगा आपने, just because of the environmental factor, the menarche will be starting from the after the 10 or 11, even though nowadays 9 also, after the 9 after the completion of the 9, 10 or age, the baby having a menarche, the female baby having a menarche started. And also the menopause, the premenopause stage nowadays, like after the 40 we are seeing so many people of so many women having a menopause. Okay, तो मेनोपॉज अगर आपका 40 मतलब 50 के बाद 55 इसमें लेट अगर अगर होता है तो भी मदर हो जाते हैं, चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के. हाई फैट डाइट during the pubertal age and the obesity in the postmenopausal age are the risk factor for the breast cancer. अगर क्या होते हैं प्यूबर्टी एज में अगर आपका हाई फैटी डाइट लेते हैं या फिर ओबीज जाती हैं, पोस्ट मेनोपॉजल मदर्स होती हैं ओबेसिटी वाली डाइट लेती हैं, ओबीज जाती है, they having a chance of the breast cancer. Okay, now the most common cancer among the women in India, that is a uterine cancer. Okay, so what are the risk factors of uterine cancer? In that, first one is early age at first intercourse. अगर कोई ये कहते हैं लेडी अर्ली एज यानी कोई फीमेल का अर्ली एज में 18 ईयर्स से पहले अगर वो इंटरकोर्स करती है, दे हैविंग अ चांस ऑफ सर्वाइकल कैंसर जस्ट बिकॉज ऑफ द unhygienic conditions. Okay, and also the hormonal imbalancing, the multiple sexual partner is another cause of the uterine cancer. Sorry, uterine and cervical cancer both actually. Then poor sexual hygiene, if you're not maintaining the hygiene before during the coitus. Repeated childbirth means if you're not maintaining the 3-year gap in between the two child. So these are the cause of the uterine and cervical cancer. So what are the prevention? The regular cervical cytology examination, pap smear, that is the pap smear, by all the women who having initiated sexual activities. ठीक है, तो अभी तो nowadays the government of India ने क्या कर दिया, small clinic they are organized in a government hospitals, and there they are means providing the facility for screening of cervical cancer. ओके, यहाँ पे क्या आता है, सर्वाइकल पैप स्मेयरिंग की जाती है फीमेल्स के लिए, स्पेशली फीमेल जो मैरिड हो गए हैं एयरली वो लोग अपना एग्जामिन करवाएं. ठीक है, एंड द वुमन हु आर एज अबव द 35 ईयर, इनके एज हो गया है, ठीक है, वो भी उन्हें भी मतलब पर ईयर इवन दो दे आर डूइंग द 6 मंथ्स या ट्वाइस अ मंथ उन्हें अपना पैप स्मेयर सैंपलिंग करवानी चाहिए टू फाइंड आउट द एनी काइंड ऑफ abnormalities. Now the risk factor, environment and the lifestyle factor. जो हमारा environment is directly affect to our health, especially our population, our water, okay, our sanitation. This directly affect to our health. Due to of this is, for example, the tobacco, lung cancer and oral cancer. Tobacco is the cause of a lung cancer and oral cancer. Alcoholism is the cause of the breast cancer, primary liver cancer, ovarian cancer, prostate cancer, and the thyroid cancer. Okay. Now the dietary factor. What are the dietary factors? That is the smoke waste cause the stomach cancer. Lack of dietary fiber cause the intestinal cancer. Beef consumption cause the bowel cancer. High fat diet to breast cancer. अगर आप high fat diet लेते हो तो आपको breast cancer होने के chances हो सकते हैं. The food additive and the contaminated may also be causative agent. अगर आप एडिटिव फूड्स लेते हो या फिर कोई ऐसे कंटामिनेटेड फूड लेते हो, वाटर कंटामिनेट ले रहे हो या फूड ले रहे हो, तो वो भी क्या करता है, कॉज करता है कैंसर. ठीक है. Occupational exposure. If you are working in any area where you are exposing the benzene, arsen, cadmium, chromium, polycyclic hydrocarbons, तो अगर ऐसे केमिकल से आप एक्सपोज होते हो, ठीक है, तो कॉज कर सकता है कैंसर. एज वेल एज अकाउंट फॉर these cancer is 1 to 5%. Okay, the virus is, if the patient having a hepatitis B and C, they having a chance of hepatic cancer. If the patient having a HIV, they having a chance of the Kaposi sarcoma. Kaposi sarcoma actually is the, okay. Now कापोसी सार्कोमा एक्चुअली होता है आपकी जो स्किन होती है उसके नीचे स्मॉल स्मॉल से पैचेस हो जाते हैं, पर्पल रेडिश कलर के, जनरली आपके नोज के, थ्रोट के, माउथ हेयर के, ठीक है, नेक के.
देन द कस्टम हैबिट एंड लाइफ स्टाइल, जो आपकी कस्टम हैबिट्स हैं या फिर आपकी लाइफ स्टाइल, दिस इज आल्सो अफेक्ट टू योर हेल्थ एंड कॉजिंग द कैंसर. अदर फैक्टर इज द सनलाइट, radiation, air pollution, water pollution, medication, different kind of medication also here. If you are taking continuously medication can cause also cancer. Then pesticide, it's are related to the cancer. Okay. Now the genetic factor. Some of the genetic factor also cause the cancer. So retinoblastoma occur in the children of the same parents. ठीक है. तो रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है एक्चुअली, हमारी जो रेटिना होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली जो क्या करती है लाइट क्लिक करती हैं. ठीक है, जो लाइट लाइटनिंग में क्लिकिंग करती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लाइट को आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअली, उनमें क्या होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है सेल की. ठीक है. देन द मंगोल्स आर द मोर लाइकली टू डेवलप द कैंसर. जो मंगोल रेस है उसमें क्या होता है जनरली, क्या होता है ल्यूकेमिया कैंसर उनके नॉर्मल चिल्ड्रन में प्रेजेंस होता है. हाउएवर द जेनेटिक फैक्टर आर लेस कॉन्स्पियस एंड द मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं which we are generally less to identify, मतलब वो easily identify नहीं हो पाते हैं. ठीक है. Now the sign and symptoms. The sign and symptom is that benign local symptom in that lump and swelling. Okay. कैंसर और टू टाइप, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट. बिनाइन वो होता है जो कि अदर पर्टिकुलर पार्ट में होता है जो स्प्रेड नहीं होता. ठीक है. वो बिनाइन का जो प्रोग्रेस होता है वो गुड होता है. ठीक है. बट जो मैलिग्नेंट होता है वो स्मॉल कार्सिनोमा होता है जो कि स्प्रेड होता है बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट में, जो प्राइमरी सेल से बाहर उस सेल से अनदर सेल में स्प्रेड होता है. ठीक है. तो बिनाइन लोकल सिम्टम्स बिनाइन ट्यूमर के हैं. आपके लंग या स्वेलिंग होती है, हेमरेज होता है, पेन और अल्सरेशन रहती है. सिम्टम्स ऑफ द मेटास्टेसिस, अगर कहते हैं बिनाइन मैलिग्नेंसी है ये मेटास्टेसिस बोल सकते हैं आप इसे. तो द साइन एंड सिम्टम इज एनलार्ज्ड लिम्फ नोड, कफ, हेमोस्टाइसिस, कफ के साथ क्या होता है ब्लीडिंग होती है, हेपेटोमेगाली, enlargement of the liver, bone pain होता है, फ्रैक्चर या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आर द symptoms of the mastitis, metastasis या फिर malignancy आप बोल सकते हो. symptoms, systematic symptom of the weight loss. ठीक है. जनरली अगर पेशेंट को कैंसर है, स्पेशली द मेटास्टेसिस है, तो वेट लॉस होता है, पुअर एपिटाइट होती है, फैटिक होता है, कॉकेक्सिया होता है, डायफ्रोसिस होता है, एनीमिया होता है. ठीक है. नेक्स्ट कॉजन. सो दीज आर द कॉजन. कौन सी ऐसी चीजें जिससे आप प्रिकॉशंस ले सकते हो, जैसे सी फॉर चेंज इन द बाउल और द ब्लैडर. जबकि बाउल और ब्लैडर हैबिट्स चेंज होती हैं. ठीक है. ए फॉर द सोर दैट डज नॉट हील. अगर आपकी बॉडी में सोर हील नहीं हो रहा है, ठीक है. अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्जेस. अनयूजुअल आपकी ब्लीडिंग और डिस्चार्ज विदाउट टेयरिंग, कहीं पे इंजुरी नहीं हुआ, कट नहीं हुआ, आपको ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्जेस हो रही है. टी फॉर थिकनेस और लंब और ब्रेस्ट और एयरवेल्स. थिकनिंग हो रही है ब्रेस्ट की या लिम्स की या किसी भी लंब की बॉडी में. ठीक है. आई फॉर द इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन सॉलिंग. अगर आपको सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है, फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो रही है. O for the obvious change in the wart or mole. जो आपके wart और mole में उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पर लार्ज हो गए, स्वेल हो गए. एंड फॉर द नेगिंग कफ एंड द हरास. ठीक है. तो कॉन्टिन्यूस आपको कफ हो रहा है, ठीक है, या हॉर्सनेस आपकी वॉइस आ रही है, तो अगर आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स राइज होते हैं, इट मे बी दीज आर द सिम्टम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और द ग्रोथ ऑफ द सेल, और दैट इज मतलब आप कह सकते हो कि इट मे बी कैंसर हो सकता है. बिकॉज यू नो व्हाट ना, कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली हमारी नॉर्मल सिम्टम्स नॉर्मल सिम्टम्स की तरह होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लंग कैंसर की बात करते हैं, तो लंग कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाते. क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज दे हैविंग अ कफ, कोल्ड एंड फीवर, जो जनरली हमें होता है. अगर हम वायरल फीवर होता है तो कफ कोल्ड होता है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इवन दो द डॉक्टर्स आल्सो नॉट रिकॉग्नाइज वेदर इट इज अ वायरल और वेदर इट इज अ due to the any abnormality in a physiological system. ठीक है. हमारी बॉडी में कोई कैंसर प्रोड्यूस हुआ है, या जनरली क्या रहता है, वी आर फोकसिंग एज अ नॉर्मल वे कि अगर कफ कोल्ड हुआ है तो ओके,
वायरल हुआ है या फिर वेदर चेंजेस हो गए हैं इस वजह से हुआ है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अर्ली डिटेक्ट द कैंसर। ओके, इवन वो हमारी एक्सरे अल्ट्रासाउंड इन सब में, इवन सीटी स्कैन में भी वो विजुलाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेनाइन एंड मैलिग्नेंट? बेनाइन इज द ग्रो स्लोली, बिनाइन क्या होता है, स्लोली स्लोली ग्रो करता है, मैलिग्नेंट क्या होता है, रैपिडली ग्रो करता है। ठीक है, जो बिनाइन होता है दैट इज द एनलार्ज और एक्सपैंडिंग ग्रो करता है, और जो मैलिग्नेंट होता है वो इनफिल्ट्रेटिंग सराउंडिंग द टिश्यू। ठीक है, इनफिल्ट्रेट होती रहती है उसकी टिश्यू सराउंडिंग एरिया में। जो मेनाइन होते हैं कैप्सूल रिप्रेजेंट, और मैलिग्नेंट जो होता है कैप्सूल एब्सेंट होते हैं। कैप्सूल क्या होते हैं, कैपिलरी सेल्स होती बनी होती है। ठीक है, जो कवर अप करती है पर्टिकुलर जहाँ पे कैंसर है। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड सेल जो बिनाइन होता है इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कैंसर सेल है। जो मैलिग्नेंट होता है, क्योंकि क्या होते हैं कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से कहता है वी कांट टू रिकॉग्नाइज इट्स अ कैंसर सेल्स। ठीक है, रिकरेंस नॉट कॉमन, रिकरेंस इज कॉमन। ठीक है, रीअकरेंस, बेनाइन में रिकरेंस नहीं होता कि दोबारा से वो हो जाएगा, लेकिन मैलिग्नेंसी में हैविंग अ फुल चांस ऑफ रिकरेंस। ओके, मेटास्टेसिस नेवर अकर्स, इसमें मेटास्टेसिस यानी मल्टीप्लिकेशंस नहीं होती है, डीएनए मैच्योरेशंस नहीं होती कंटिन्यू, इसमें मेटास्टेसिस होती है, स्मॉल सेल्स मेटास्टेसिस होती है। न्यूप्लाज्म इज नॉट हार्मफुल टू होस्ट। ठीक है, जो न्यूप्लाज्म था वो होस्ट को हार्मफुल नहीं करता, बट इसमें हार्मफुल करता है। ठीक है, और लास्ट वन इज जो बिनाइन होता है उसका प्रोग्नोसिस गुड होता है। ठीक है, जनरली हम बिनाइन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते, अगर बहुत ज्यादा हम जनरली इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो फिर सिम्टम्स राइज हो रहा है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, बट मैलिग्नेंट का जो प्रोग्नोसिस होता है दैट इज वेरी पुअर। So what are the management for the cancers? The first one is the surgeries depend upon actually the individual condition, क्योंकि किस चीज की नीड है। For example, the patient having a brain tumor और वो spread हो चुका है, 3rd degree में है, so we can't do surgery. Okay, that time generally we are start the chemotherapy or the radiation we are started. Also depend upon the patient condition, whether the patient are means the patient body has accepted the radiotherapy or the chemotherapy or not. Okay. अनदर वन इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, आपकी ड्रग्स थेरेपीज हैं। रेडियोथेरेपी, रेडिएशन एक्सरे रेज प्रोड्यूस की जाती है इस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे कैंसर है। इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी, इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी क्या होता है, इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, जिससे कहता है हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है और हम कहते हैं पेशेंट अपनी ओन इम्यून से फाइट करता है कैंसर को। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं हम। हार्मोनल थेरेपी आल्सो वी आर प्रोड्यूसिंग। देन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाई थेरेपी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपी। ठीक है, अब देखा कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव, स्पेशली इन इंडिया बहुत सी कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव थेरेपी है कैंसर के, जिसमें कोई भी सक्सेसफुल नहीं है, बट क्या दे आर प्रोवाइडिंग एक्चुअली। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव थेरेपी है ना, इट्स डिपेंड अपॉन द स्टेजेस ऑफ द कैंसर। जैसे फॉर एग्जांपल हम आयुर्वेदिक इसके लिए करते हैं ट्रीटमेंट, बट इट्स डिपेंड अपॉन द मींस फर्स्ट स्टेज है तो आप इजीली किसी चीज को कवर अप कर सकते हो, 3rd 4th स्टेज में आप वो चीज कवर अप नहीं कर सकते। ठीक है, so in that the first one is the chemotherapy. Chemotherapy is a drug that can destroy the cancer. ठीक है, it also refer to a cytologic drugs which affect the rapidly divide the cell, interfering with the DNA duplication or the separation newly formed chromosomes. ठीक है, तो क्या करते हैं, डीएनए की डुप्लीकेशन जो कीमोथेरेपी होती है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, जो क्या करती है हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, डुप्लीकेशन हुई डीएनए सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन ये सिर्फ हमारे उन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती, हमारी नेचुरल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कीमो के पेशेंट्स होते हैं ना, उनका वेट कंटिन्यूअसली क्या होता है, लॉस होता है, दे हैविंग अ मोर चांस ऑफ द इन्फेक्शन, बिकॉज उनके जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं कीमोथेरेपी में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, बिल्डअप करते हैं प्रोटीन को कैंसर सेल्स के सरफेस में। ठीक है, देन इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के थ्रू क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इम्यून सिस्टम, ताकि हो सके जो पेशेंट है वो अपने ओन इम्यून से फाइट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है कि इंट्रावेस्कुलर बीसीजी थेरेपी फॉर द कैंसर ब्लैडर, जिसको ब्लैडर कैंसर है तो हम बीसीजी से देते हैं। ठीक है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जनरली करते हैं जो हमारा बोन मैरो होता है स्टेम सेल बनाना बंद कर देता है। ठीक है, या फिर एबनॉर्मल स्टेम सेल प्रोड्यूस कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ठीक है, जैसे किसी को स्पेशल कंडीशन हो तो ब्लड कैंसर एंड द बोन
Okay, blood cancer and that is bone marrow also. Okay, leukemia, lymphomia, multiple myeloma, sickle cell anemia is condition में. Now the prevention of the cancer. So how you will prevent the cancer is the primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. So pre-mordial prevention का मतलब होता है कि आपको पता है मॉड्यूलेशंस करनी है अपनी environment में, अपनी health में, अपनी diet में. तो जो भी कॉजिटिंग फैक्टर्स हैं वो पहले से आपको ये पता है, तो अपने आप को कितना मॉडिफाइड करना है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. प्राइमरी प्रिवेंशन जब प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन देते हैं कि हमें वो चीज, फॉर एग्जाम्पल मुझे रिस्क है होने का, मैं प्रिवेंशन लूंगी नहीं, मुझे अल्कोहल नहीं लेना है या फिर मुझे टोबैको नहीं लेना है. ठीक है. सेकेंडरी प्रिवेंशन जब हो गया तो अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए सेकेंडरी प्रिवेंशन में. ठीक है. तो दैट कि हम ट्रीटमेंट ले सके. टर्शरी प्रिवेंशन इज लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ट्रीटमेंट. ठीक है. जब आपको लेट डिटेक्शन हुआ है देन यू हैव टू just improve your quality of life. So these are the generally prevention of cancer. Okay. The cancer prevention, the treatment studies for India. So India में actually इसकी क्या studies है? Now in that formulate a national cancer control program, the control of tobacco related cancer. ठीक है. इन्होंने क्या बताया, फॉर्मुलेट किया था नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम को, इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था. इसने कंट्रोल किया टोबैको रिलेटेड कैंसर्स में. अर्ली डायग्नोसिस में दे आर फोकसिंग ऑन द अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन एंड सर्वाइकल कैंसर. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थेरेपी सर्विसेज, पेन रिलीफ एंड पैलिएटिव केयर. तो जो आपका नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, इसने एक तो जो टोबैको से जो कैंसर हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजीज डेवलप की. इसके अलावा जो यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है उसके डायग्नोसिस के लिए, अर्ली ट्रीटमेंट के लिए इसने फोकसिंग किया. इसके अलावा इन्होंने क्या था, डिस्ट्रीब्यूट की थेरेपिक सर्विसेज के लिए, सर्विसेज पेन रिलीफ के लिए और पैलिएटिव केयर देने के लिए. पैलिएटिव केयर क्या होती है, सपोर्टिव केयर होती है, क्वालिटी की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो हम केयर देते हैं, एंड ऑफ केयर काइंड ऑफ. ठीक है. तो प्राइमरी प्रिवेंशन एंड द स्क्रीनिंग प्रोग्राम. तो इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए क्या किया था इंडिया ने, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन एम टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द कैंसर बाय द रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, प्राइमरी स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, सो दैट कि हम पहले से अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए कि इतने पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कंडीशन, अर्ली डिटेक्शन होगा तो क्या होगा, इजीली ट्रीटमेंट पेशेंट को अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है. और हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. ओरल कैंसर. The 5th% of all the cancer in a male are tobacco related can be prevented by the anti-tobacco programs. Teenage student need to be the target. इन्होंने क्या किया, teenage students उनको target किया इसके लिए. Legislation has to be the enforced for prohibiting the tobacco advertisement and sale for the tobacco youngsters. ठीक है. तो legislation जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारी law standard produce means develop करते, उन्होंने कहा कि this is the prohibited, this is means प्रोहिबिट कर दिया टोबैको एडवर्टाइजमेंट के लिए और टोबैको की सेलिंग करने के लिए, स्पेशली जो यंगस्टर्स थे. ठीक है. सो दैट कि हम जो टोबैको से होने वाला कैंसर है उसे कंट्रोल कर सके. इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्दी डाइट, और दे आर प्रोवाइडिंग ए हेल्थ एजुकेशन एंड दे आर हाईलाइटिंग द हेल्दी डाइट, स्पेशली जो ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स थे और फ्रूट्स थे उनमें फोकसिंग किया, दैट कि हमारा जो टोबैको से होने वाला कैंसर है वो रिड्यूस है. आई टोल्ड यू ना कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल और येलो लीफ वेजिटेबल जो होते हैं वो ओरल कैंसर से प्रिवेंट करते हैं. ओके. नाउ कैंसर ऑफ द यूट्राइन एंड सर्विक्स. ठीक है. तो यूट्राइन और सर्विक्स कैंसर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रोवाइड किया, दे आर प्रोवाइडिंग अ जेनिटल हाइजीन, safe sexual practice. They are educate to the people regarding the genital hygiene or the safe sexual practices. The cervical cytology, pap smear screening. आपने देखा होगा अभी गवर्नमेंट में क्या था, जो pap smear screening है that is available even the each government sector, also the private sector. Then 35 to 64 years should be undergo the regular pap smearing screen. जो 35 से 64 ईयर जो लेडीज हैं उन्हें रेगुलर पेप स्मेयर स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द मींस ईयर में 2 टाइम मिनिमम दे हैव टू गो. नाउ इन द ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी स्क्रीनिंग अवेलेबल कराई. मैमोग्राफी स्क्रीनिंग क्या होती है, ये एक एक्सरे मशीन होती है जिसके थ्रू क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं ब्रेस्ट में कोई कैंसर प्रेजेंस है या नहीं है. रेगुलेट द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नीड टू बी प्रमोट टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर. इसके अलावा इन्होंने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को रेगुलेट किया. इसके लिए क्या किया गया, आपने देखा होगा जो स्कूल्स होते हैं वहां पे भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन
प्रैक्टिस करवाई जाती हैं, ठीक है, उनको एजुकेट किया जाता है यंग्स जितने भी हमारे एडल्टहुड्स हैं, ठीक है, or adolescents, actually adolescents group को especially. The breast self examination can be the propagated through the print, electronic media as well as through the healthcare person in the various setting. तो जितने भी healthcare person है various setting में, जैसे एएनएम है, आशा है, या staff nurses हैं, या doctors हैं, they are going to a different area and organize some program. By that organize, they have to counseling the youngsters and the women to do their self-care self-care examination to find out the any kind of the abnormalities. Okay, then the studies for the early detection of the common cancer in India. ठीक है, तो हम कॉमनली इंडिया में मीन्स इंडिया में हम कैसे कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, इन्होंने एक स्ट्रेटेजीज बनाया था. फर्स्ट इज पैप स्मेयर, सेकंड इज मैमोग्राफी, थर्ड इज पीरियोडिक एग्जामिनेशन. ठीक है, so the approach to cancer control, they are the four principal approach to cancer control. हम कैसे कैंसर को अप्रोच कर सकते, कैंसर कंट्रोल अप्रोचेस कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट इज वी हैव टू डू द प्रिवेंशन. सेकंड, अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे. थर्ड इज डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए. और फोर्थ इज जो अब इनको हो गया है, जो लॉन्ग टर्म केयर में, थर्ड और फोर्थ स्टेज में, दे आर वी आर प्रोवाइडिंग अ पैलिएटिव केयर टू द पेशेंट. तो क्या है अप्रोचेस थी हमारे कैंसर को कंट्रोल करने की. फर्स्ट वी हैव टू फोकसिंग ऑन द प्रिवेंशन, जितना हो सके हमें प्रिवेंट करना है. ठीक है, अब अगर किसी को पेशेंट को हो गया है तो वी हैव टू मींस डू दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज. तो वी हैव टू फाइंड आउट अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर. हम जितने जल्दी स्टेज में आइडेंटिफाई करेंगे उतने ज्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, गुड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट हॉस्पिटल्स. आपको पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं, कुछ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी जहाँ पे जाते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जाता है. ठीक है, नाउ द नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम. तो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो था 1975 टू 1976 में लॉन्च हुआ था ये. ठीक है, जनरली इसकी प्रायोरिटी क्या थी. दे आर प्रोवाइडिंग द इक्विपमेंट टू द प्रीमियर कैंसर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन. जितने भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे की कीमोथेरेपी ड्रग्स चलाई जाती हैं या फिर जहाँ पे कीमो को पेशेंट को देखा जाता है, ऐसा किया जाता है, इन्होंने उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया था उस इंस्टीट्यूट को या फिर हॉस्पिटल को. ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंट एट दिस रेट 2.5 लाख वाज गिवन टू ईच इंस्टीट्यूट फॉर द परचेज ऑफ द कोबार्ट मशीन. कोबार्ट एक्सरे मशीन जो दी थी अपनी. तो हर एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उन्होंने उनको 2.5 लाख रुपए क्या कहते हैं इस इंस्टीट्यूट को स्प्रेड करवाए थे, मींस डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे. 1984 to 1985 the strategy was devised and stress on. अब इन्होंने क्या किया, देखो ये तो 1975 to 1976 में था. इन्होंने फोकस किया कि जिनको हो गया है उनके लिए कोबार्ट मशीन अवेलेबल कराई. फिर इन्होंने क्या किया 1984 में से 1985 में स्ट्रेटेजी बनाई, रिवाइज किया गया स्ट्रेटेजीज को. उन्होंने फोकस किया कि प्राइमरी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन हो सके कैंसर केसेस का. जितना जल्दी हम प्रिवेंट करेंगे और जितना जल्दी हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे उतना हम कंट्रोल कर सकते हैं. फिर 1990 टू 1991 में जो डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम था उन्होंने स्टार्ट किया किसको, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को. ठीक है, जो नियरली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे, ठीक है, उनको सेलेक्ट किया कि कहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए. फिर 2001 मॉडिफाई द डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम. फिर डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम को क्या कहते हैं इनिशिएट किया गया डिफरेंट हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स में. 2004 में अगेन इवेलुएट किया गया नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम. नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम वाज डन बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर न्यू दिल्ली. ठीक है, तो इसको एंड द नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम को इवेलुएट किया गया कितना उन्होंने अभी तक स्ट्रेटजी जो उन्होंने डेवलप की है, जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है. ठीक है, प्रोग्नोसिस क्या है वो किसके थ्रू किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ दिल्ली. 2005 में प्रोग्राम वाज फर्दर रिवाइज आफ्टर इवेलुएशन. ठीक है, जब वहां पे ऑडिट किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बाद उन्होंने 2005 में दोबारा से रिवाइज किया प्रोग्राम. ठीक है, इवेलुएशन के बाद. और जो भी फर्दर रिकमेंडेशन थी, एक बात और स्टूडेंट, कि जब भी हम कहीं पे इवेलुएट करते हैं, किसी चीज का इवेलुएशन करते हैं ना, तो जो भी उनमें कमियां आती है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम का एक अपना एक गोल है. जैसे उसका प्रोग्राम गोल था कि जो कैंसर पेशेंट्स है उनको रिड्यूस करना, अर्ली डिटेक्शन करना. तो जब कोई इवेलुएशन की टीम आए, जैसे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम न्यू दिल्ली आया था उसको इवेलुएट करने के लिए नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम को. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने ये चीज अचीव कर ली है और इनको ये चेंजेस करना चाहिए जिससे ये और अचीवमेंट करे. तो वो रिकमेंडेशंस होती है. ठीक है, देन गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द
NCCP. अब इवेल्युएशन के बाद उसके क्या गोल थे? द फर्स्ट इज प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर बाय हेल्थ एजुकेशन, स्पेशली रिगार्डिंग द हजार्ड्स ऑफ टोबैको कंजप्शन एंड नेसेसरी ऑफ द जेनिटल हाइजीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट उनका था कि दे आर फोकसिंग ऑन द प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, स्पेशली जैसे टोबैको कंजप्शन हो रही है कि जेनिटल हाइजीन में, तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाके गवर्नमेंट्स के थ्रू, हेल्थ सेक्टर्स के थ्रू, दे आर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द पीपल ऑफ द कम्युनिटी रिगार्डिंग द टोबैको consumption, ठीक है, prohibition of the tobacco consumption and maintaining the personal hygiene, especially for the prevention of cervical cancer. Now secondary prevention is early detection, the diagnosis of the cancer, for example the cancer of the cervical, breast, of the oropharyngeal cancer by the screening of the method and the patient education, also examination method। ठीक है, तो secondary में इन्होंने क्या किया, जितने भी कैंसर है उन्हें डिटेक्ट करना, उन्हें अर्ली आइडेंटिफाई करना। थर्ड इन्होंने किया एग्जिस्टिंग कैंसर ट्रीटमेंट, जो कैंसर ऑलरेडी है, एग्जिस्ट हैं जितने केसेस, उनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट और फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एज वेल एज दे आर प्रोवाइडिंग अ टर्मिनल पैलिएटिव केयर टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज है, जहाँ पे आप सिर्फ पेशेंट के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। वी कांट मींस रिड्यूस द कैंसर, हम पेशेंट को कैंसर फ्री नहीं कर सकते, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम उसकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं पैलिएटिव केयर के थ्रू, हम उसे सपोर्टिव केयर देते हैं, उसको हम सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट, उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स जो राइज हो रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, उन्हें वेट लॉस हो रहा है, उनका हेयर फॉल हो रहा है, उनका, ठीक है, पर्सनैलिटी चेंजेस आ रहे हैं उनके, या फिर इरिटेशन हो रही है उन्हें, इन्वायरमेंटल जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, पैलिएटिव केयर देते हैं पेशेंट को। Now the strategies क्या है? The prevention and the early detection of the cancer through the district cancer activity and strengthening IEC campaign. तो जो आपके information education काउंसिल है, इन्होंने strategies बनाई कि first they are the prevention कर लेंगे और early detection करेंगे, ठीक है, district cancer activities के through, ठीक है। Then the development of the early diagnosis capacity in the district hospital, जितने भी district hospitals हैं उनमें ये facility apply करना so that कि वो early diagnose कर सके, encourage करना public private partnerships को। public private partnership का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट का एक गोल है, we have to control the cancer, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, प्राइवेट सेक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या करता है, गवर्नमेंट के इस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के जो पर्सन्स होते हैं वो वर्क करते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, उसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से हॉस्पिटल्स होते हैं पीपीसी मोड पे होते हैं, ठीक है, तो पीपीसी मोड एग्जैक्टली है क्या, कि अब कोई गवर्नमेंट ने कोई गोल स्टार्ट किया, ठीक है, और वो फुलफिल नहीं हो पाया है, तो वो क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है उससे हेल्प लेता है और उसके जो पर्सन्स होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करके उस गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द पैलिएटिव केयर इन कैंसर। Now, to promote the research in the cancer that would be relevant to the cancer control in India, promote the innovation on the cancer care and the cancer treatment equipment. जितना ज़्यादा हो सके equipment distribute करवाए, ठीक है, promote क्या innovation cancer, मतलब जितना हो सके innovate करवाए, researches start करवाए cancer का, आपको देखा होगा research centers हैं अभी बहुत से जगहों में हमारे, to promote the cancer excellence in the field of the cancer management with the support of the existing RCC of 20-year proven track record by providing the financial assistance, ठीक है, तो उन्होंने प्रमोट किया सेंटर ऑफ एक्सिस्टेंट फील्ड को कैंसर मैनेजमेंट के लिए, आरसीसी सपोर्ट के लिए, जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है एक ट्रैकिंग सिस्टम, जो एज वेल एज प्रोवाइड करती है फाइनेंस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, टू आर्ग्यूमेंट कॉम्प्रिहेंसिव केयर cancer care facility across the country through the institutional capacity building in the new existing releasing cancer center through a new existing oncology wings, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑर्गुमेंट करवाए न्यू कैंसर केयर फैसिलिटीज ऑर्गुमेंट करवाई, ठीक है, यानी कि जो कैंसर फैसिलिटीज थी उनमें इनोवेशन करवाया, ठीक है, और किसके थ्रू, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के थ्रू कुछ न्यू इंस्टीट्यूशन डेवलप किए, ठीक है, और इसके अलावा कुछ न्यू रीजनल सेंटर भी इन्होंने डेवलप किए, ठीक है, ऑन्कोलॉजी विंग्स को क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग कर दिया, ऑन्कोलॉजी जो आपका डिपार्टमेंट है उसे बढ़ा दिया, पास कर देते, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द ट्रेनिंग ऑफ ऑल द पर्सन इन द कैंसर प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन टू बी डन फॉर द ऑल द कैटेगरी इन द फेज मैनर, ठीक है,
तो कैपेसिटी बिल्डिंग दैट इज जितने भी मतलब हेल्थ पर्सन थे उन सबको क्या किया, ट्रेनिंग दिया गया दैट कि वो इजीली डिटेक्ट कर सकें केसेस को। हेल्थ एजुकेशन ऑफ ऑल द जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक थी उन्हें हेल्थ एजुकेशन दी गई ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, प्रिंट मीडिया, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए, पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दिया गया, इवन दो अब तो न्यूज में भी एडवर्टाइजमेंट आता है, सो दैट के जो पीपल्स है वो अवेयर हो सके। ठीक है, वी हैव टू प्रिवेंट द कैंसर। नाउ द एग्जिस्टिंग स्कीम अंडर द नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम इज दैट the RCCS recognition of the new National Cancer Center, that is the goal of RCCS is to enhance the cancer treatment facility across the country and reduce the geographical gap in the country in the availability of the cancer care facility. A one-time grant of 5 crore is being provided for a new RCCS. तो जितने भी new RCC centers थे उनको क्या था, उनको जो आरसीसी सेंटर्स हैं यानी रीजनल कैंसर सेंटर्स हैं, ठीक है, उनकी फैसिलिटी को बढ़ाया गया, ठीक है, सो दैट कि हमारा जोग्राफिकल जो गैप है कि हम पास जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कैंसर पे वो हम फुलफिल कर सके। ठीक है, जिसके लिए उन्हें 5 करोड़ रुपीस प्रोवाइड कराए गए थे इस न्यू आरसीसी सेंटर में। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रीजनल कैंसर सेंटर, अब उसके स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए वन टाइम पे उसे 3 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, तो दैट के जो कैंसर केयर सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो सके। रोल ऑफ द आरसीसी, आरसीसी का रोल एक्चुअली क्या है, आरसीसी क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दे शुड बी मैकेनिज्म इन द प्लेस ऑन प्रपोजल ऑफ स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी को अवेयर करता है थ्रू देयर हेल्थ सेक्टर पर्सन, ठीक है, एंड द हेल्थ पर्सन रिगार्डिंग द कॉमन कैंसर एंड देयर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, वो कम्युनिटी को बताता है कि कैसे वो किसी सिम्टम के बेसिस में अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, तो ये कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर से। ठीक है, The institution should undertake the training of the medical officers, क्लब जो मेडिकल ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग उन्होंने करवाई किस चीज के लिए, कैंसर, जैसे आपको देखा होगा जो एमडीज होते हैं जो लोग पीजी करते हैं एमबीबीएस के बाद, ठीक है, तो उसमें एक स्ट्रीम है आपकी ऑन्कोलॉजी, तो वो फैसिलिटी अवेलेबल कराई सो दैट कि जितना हो सके वो मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल हो, सो दैट दे आर प्रोवाइडिंग एंड आइडेंटिफाई द अर्ली डिटेक्शन ऑफ, मींस दे हैव आइडेंटिफाई द अर्ली means identify the new cases especially, ठीक है, and also they are providing the supportive care to the patient, training for all the medical officers and the health worker in early detection prevention, इसके अलावा उन्होंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई जितने मेडिकल ऑफिसर्स थे और जितने भी आपके वर्कर्स थे, हेल्थ पर्सन थे, so that कि वो अर्ली डिटेक्ट कर सके कैंसर को, प्रिवेंशन कर सके कैंसर को, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके दोज आर ऑलरेडी हैविंग अ कैंसर। ठीक है, किसके थ्रू, इंस्टीट्यूशनल के थ्रू, इंस्टीट्यूशनल जो आपके कैंसर इंस्टीट्यूशन थे उनके थ्रू ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। A referral linkage should be developed between the RCC and hospital under the district cancer control program so as to ensure the continuity of treatment chain। अब जो आरसीसी है जो डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है उन दोनों के बीच के पार्टनरशिप है, सो दैट की जो हमारी कॉन्टिन्यूटी है ना ट्रीटमेंट की वो मेंटेन रहे। इसके अलावा इसमें रिसर्च एक्टिविटी इन्वॉल्व कराई गई, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैंसर शुड बी कैरिड आउट। ठीक है, कंटिन्यू करती है हमारे डे बाय डे रिसर्चेस हो रही है कैंसर में, किस तरह से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हमारी डिटेक्शन कर सकते हैं और कौन सा हम ट्रीटमेंट से ट्राई करते हैं, बिकॉज स्टिल कैंसर का अभी तक कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, the RCC will have to undergo the periodic monitor and evaluate to ensure the satisfactory function। ठीक है, तो RCC क्या करता है, मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है कि जो उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड करी है उसका इवेल्युएशन क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द ऑन्कोलॉजी विंग्स, उन्होंने ऑन्कोलॉजी विंग्स डेवलप किया जिसका ऑब्जेक्टिव क्या थे, to reduce the geographical gap in the cancer treatment facility in a country by establishing the cancer treatment center in the area where these are the deficient. The government hospital and the government medical colleges are provided with a grant of rate 3 crore for the development of oncology wings। ठीक है, तो इनका इन्होंने oncology wings डेवलप कराए थे, तो जो oncology wings थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारी जो कंट्री में कैंसर से रिलेटेड जो फैसिलिटी अनअवेलेबल है उन्हें अवेलेबल करवाना, जितना हो सके ट्रीटमेंट फैसिलिटी को अपग्रेड करना, सो दैट कि हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं वहां जहाँ पे की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी इन्होंने 3 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किया है डेवलप करने के लिए ऑन्कोलॉजी विंग्स। जैसे आपने देखा होगा अभी क्या है,
जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सब में क्या होते हैं, ऑन्कोलॉजी एक यूनिट है जहाँ पे जो कैंसर पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, ठीक है। प्रोविजन अंडर द स्कीम, अब इस स्कीम के क्या अंडर क्या प्रोविजन थे, प्रोवाइड फॉर द सैंक्शन ऑफ द ग्रांट इन एड वुड बी टू गिव द इंस्टीट्यूशन लोकेशन ऑफ वेयर देयर इज नो ट्रीटमेंट फैसिलिटी, उन्होंने वहां पे अवेलेबल कराया ये सेंटर जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। Then institutional which had to earlier available all the grant to rates prevailing then would be eligible to get the differentiated amount between the grant received earlier and the grant admissible under the revised scheme, ठीक है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट थे उनमें क्या उन्होंने अर्ली अवेलेबल करवाए, ठीक है। मतलब जो भी उनकी डिमांडेड थी, जो भी उन्होंने कहा कि ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो सारी फैसिलिटी की अवेलेबल कराई, ठीक है। और एक रिवाइज स्कीम दिया उन्हें, फाइनेंशियली उन्हें प्रोवाइड किया, जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उसके बेसिस में उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड किया गया। तो फाइनेंस जिन्होंने की वन टाइम 3 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए जाते हैं इक्विपमेंट के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है। द वन पार्ट ऑफ द ग्रांट इज नॉट एक्सीड, एक पार्ट में 30% से ज्यादा एक्सीडमेंट जो आपने दिया है ग्रांट, उससे ज्यादा उसमें 30% ज्यादा एक्सीडमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनरली जो है 3 करोड़ रुपीस दिए जाते हैं, वो किसी को दिए जाते हैं रेडियोथेरेपी के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, पेशेंट केयर के लिए, ठीक है। The district cancer control program in that the launch is 1990 to 1991. तो इसके 5 एलिमेंट है। फर्स्ट, they are providing health education to the community. They have to find the early detection cases of the cancer, training of the medical paramedical personnel, okay, to identify the person, providing the treatment, okay. They also provide the palliative treatment and the pain relief symptomatic treatment. They also coordinate and monitoring. तो ये क्या है इनके साथ कि डिस्ट्रिक्ट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के गोल हैं, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आर लिंक विद, किसके साथ लिंक है, एक तो रीजनल कैंसर सेंटर के साथ लिंक है, दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ लिंक है, तीसरा मेडिकल कॉलेजेस के साथ लिंक है। फॉर इफेक्टिव फंक्शन स्टार्ट हैव वन डिस्ट्रिक्ट कैंसर सोसाइटी दैट इज चेयर्ड बाय द लोकल कलेक्टर चीफ मेडिकल ऑफिसर, other member of the dean of the medical college, Jila Pradesh representative, NGO representative, it's, ठीक है। Now the decentralized NGO scheme is this scheme has been devised to promote the IEC prevention, early detection of the cancer. NGO will implement these activities under the coordination of the nodal agency, which will be the RCC or oncology. The grant of 800 per camp will provide to NGO for the IEC activity. तो डिसेंट्रलाइज एनजीओ स्कीम क्या थी, डिसेंट्रलाइज एनजीओ स्कीम जो थी उन्होंने क्या था, प्रमोट किया आईईसी के थ्रू प्रिवेंशन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर केसेस को, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग द हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड किया किसके लिए, मतलब एक्चुअली ये काम करते हैं नोडल एज ए नोडल एजेंसी के थ्रू कोऑर्डिनेट के काम करते हैं आरसीसी और ऑन्कोलॉजी विंग के साथ, ठीक है। और जितने भी इन्होंने कैंप्स लगवाए एनजीओ ने, उस कैंप्स के लिए इन्हें 8,000 रुपीज पर कैंप प्रोवाइड किया गया, ठीक है। Now, what are the achievement? The regional cancer center, as of now, there is a 27 regional cancer center हमारे यहाँ available हैं, जिसमें क्या था 6 NGO हैं जो provide करते हैं comprehensive care को। Outreach and the research activity prevention and treatment of the cancer carried out these center, जो भी outreach और cancer prevention और treatment है वो इन सभी इन्हीं centers के थ्रू provide किया जाता है। Oncology wings का मतलब होता है suppose has given 82 institute by both government and medical colleges, government hospital for developing the oncology wings. At present there is a 240, ठीक है। oncology wing के oncology पर्सनल जो डिपार्टमेंट होता है वो oncology wing है जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, ठीक है। हम एट प्रेजेंट टाइम पे 246 इंस्टीट्यूशन जो है वो रेडियोथेरेपी फैसिलिटीज के अवेलेबल है, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग 27 रीजनल सेंटर, इसमें क्या 27 रीजनल सेंटर भी इन्वॉल्व है जहाँ पे की ऑन्कोलॉजी विंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी विंग्स में होता है अपना एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड सारी फैसिलिटी जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। District Cancer Control Program, the District Cancer Control Program, which has been developed and initiate the awareness and the early detection activities at the district level, are the place in 28 district at present. So at present time पे जो district cancer control program है वो 28 district में
प्रिवेंशन भी करवाता है, अर्ली डिटेक्शन भी करता है, ट्रीटमेंट भी करता है और पैलिएटिव केयर भी प्रोवाइड करता है। IEC एक्टिविटीज क्या है? द प्रोग्राम सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ द हेल्थ मैगजीन कल्याणी एंड टेलीकास्ट बाय द प्रसार भारती, टारगेटिंग स्पेशली दोज लिविंग इन द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स। ठीक है, तो जो क्या करते हैं, बहुत ही रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लिए भी क्या होता है, टेलीकास्ट के थ्रू या कल्याणी एक हेल्थ मैगजीन के थ्रू उन्हें अवेयर कराया गया। ठीक है, तो जनरली जो IEC की एक्टिविटी क्या है, ये क्या करती है, अवेयर करती है कम्युनिटी को रिगार्डिंग द कैंसर। ठीक है, it is interactive program which provide the interference to people which they expect on various health and social issue। क्योंकि बहुत से health and social issues होते हैं, उनसे भी क्या होता है, interact करती है, ये interact किया जाता है एक्टिविटी के थ्रू। न्यू इनिशिएशंस क्या है कैंसर के? इंडिया हैज बिकम अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। अब क्या है, इंडिया क्या है, IARC का मेंबर है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में। सेकेंड, जो पेपिस्मेर किट है कि वो सप्लाई करा गई 12 आपके RCC सेंटर्स में। ऑन्कोनेट इंडिया टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट स्टार्ट कराए गए, जो क्या कहते हैं, कनेक्ट करते हैं हमारे 27 RCC सेंटर्स को 4 to 5 पेरिफेरल सेंटर बीइंग ऑप्शनलाइज्ड। ठीक है, तो टेलीमेडिसिन से 27 RCC और 4 to 5 क्या है, पेरिफेरल सेंटर कनेक्ट हैं। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि फॉर टेली मतलब होता है कि जैसे हम फार बैठ के भी क्या कहते हैं, इजीली पेशेंट को असिस्ट कर सकते हैं। वो आपने टेलीमेडिसिन पढ़ा हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रूरल में रहता है, वहां हम किसी पेशेंट को स्क्रीनिंग करनी है, तो वहां पे एक स्मॉल सा सेंटर होता है जहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग कराई जाती है, उसको ऑनलाइन उस रिपोर्ट को सेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई रूरल में बैठा है और उसे दिल्ली सेंटर करना है, तो दिल्ली में जो टीम होगी वो उसकी जो रिपोर्ट है उसे एग्जामिन करती है, ऑनलाइन वो चेक कर सकती है। ठीक है, उसके बेसिस में उसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। क्योंकि जहाँ पे स्पेशली पेशेंट को होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, ट्रांसफर फैसिलिटी नहीं है, वो आ नहीं सकता। Training of the cytopathologist, cytotechnician in the quality assurance in pap smear। ठीक है, तो pap smear की क्वालिटी अश्योर करने के लिए जो साइटोपैथोलॉजिस्ट थे या साइटोटेक्नीशियन थे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। पार्टिसिपेशन इन द हेल्थ मेल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ एजुकेशन मटेरियल, तो पार्टिसिपेट कराया गया हेल्थ मेला में और डिस्ट्रीब्यूट किए गए हेल्थ एजुकेशन मटेरियल्स को पीपल्स में। ठीक है, तो प्रोस्टेट स्टैम्प डिपिक्टिंग ब्रेस्ट एग्जाम, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए भी अवेयरनेस प्रोवाइड किया गया। ठीक है, कैंसर अवेयरनेस डे के दिन जनरली क्या होता है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। The National Cancer Awareness Day is celebrating on the birth anniversary on the nodal Lucrate Madden Cure 7th November. Telecast of the health magazine Kalyani current year cancer and the tobacco item under the agreement with the Prasad Bharati and the MOHFW। ठीक है, तो जो प्रसाद भारती है और जो हेल्थ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, उन दोनों के थ्रू मैगजीन लॉन्च करवाई गई कल्याणी, जिसके थ्रू पीपल्स को अवेयर किया गया। ठीक है, इसके अलावा ब्रॉडकास्ट हेल्थ एजुकेशन जिसे ऑडियो मीडिया के थ्रू डेवलप कराया गया, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ नेशनल कंट्रोल जो आपके सेंटर्स थे वहां पे कोलकाता में, किसके थ्रू, FM रेडियो के थ्रू। जो कोलकाता में या छत्तीसगढ़ में ऑडियो यानी FM रेडियो के थ्रू कैंसर के रिगार्डिंग एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई गई। ठीक है, नाउ द कम्युनिटी बेस्ड कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ WHO के थ्रू कम्युनिटी बेस्ड कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कैरिड आउट किया गया। इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई थी हर पर्सन को डिस्ट्रिक्ट लेवल में, so दैट कि वो पीपल्स को अवेयर कर सके कैंसर के रिगार्डिंग। टेलीमेडिसिन स्टार्ट किया गया कैंसर के लिए। ठीक है, IC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कंटिन्यू करवाई गई एक्टिविटीज को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया था, इसलिए हमारा 7 नवंबर के दिन। ठीक है, जिसमें हम जनरली करते हैं, एजुकेट करते हैं पीपल्स को रिगार्डिंग द कैंसर, हाउ दे विल प्रिवेंट द कैंसर, हाउ दे विल मॉडिफाई देयर लाइफ। नेशनल कैंसर रजिस्ट्रेंसी प्रोग्राम ICRM, that is launched in 1982 by Indian Council of Medical Research, provide the true information of the cancer prevalence and the incidence। ये क्या करती है, हम बताती हैं कि कितना प्रेवलेंस रेट चल रहा है कैंसर का और कितना इंसिडेंस है। ठीक है, कैंसर रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सिस्टमैटिकली एंड कॉन्टिन्यूस कलेक्शन इन्फॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। इसके थ्रू क्या करते हैं, हम नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम द कैंसर एट प्रेजेंट टाइम,
ये जिनके सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू जनरेट द ऑथेंटिक डाटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कैंसर प्रॉब्लम इन इंडिया। दे हैव टू फाइंड आउट द ऑथेंटिक डाटा रिगार्डिंग द कैंसर, ठीक है। अंडरटेक द एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइस कंट्रोल मेजरमेंट, कि कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट है जिसके हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है प्रमोट द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन कैंसर एपिडेमियोलॉजी। They have to promote the resources, development resources in a cancer epidemiology में provide कराया गया। The type of registration, two type के होते हैं आपके, एक तो होता है आपका population based cancer registry, दूसरा होता है hospital based cancer registry। population based cancer registry मतलब होता है कि आपके इसमें कुछ फिक्स नंबर दिया था, 6 इन नंबर, जैसे अर्बन एरिया में दिल्ली है, भोपाल, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, और रूरल एरिया में भरसी और महाराष्ट्र। और हॉस्पिटल बेड रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाए गए, छत्तीसगढ़ से, डिब्रूगढ़ से, तिरुवनंतपुरम से, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, 6 हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्रेशन मेंटेन किया गया। नाउ द कैंसर एटलस, द ब्रिंग्स the gap and project atlas of the cancer in India was started under the WHO ICMI since 2003, mainly to have an idea of the pattern of the cancer in the several part of the country। तो उसके लिए atlas start किया गया, that we have to easily identify and to learn, okay। And under this program, ICMR has developed an atlas of the cancer in India based on the information collection for the year 2001 to 2 from 105 collaborating centers to have an idea of the pattern of the cancer across the country। तो all over the country में cancer pattern को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए एटलस स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। तो हम ओवरव्यू ले सकते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री का, और कैलकुलेट कर सकते हैं हम इंसिडेंस को, ठीक है, जहाँ पे feasible हो सके। So I hope you understand this topic. If you have any doubt, you are free to ask.